इन माई लास्ट वीडियो जहाँ मैंने आपसे अपने स्किन केयर रूटीन की बात की थी, मैंने आपको बताया था दैट आई हैव मेड अ मिस्टेक विथ माई स्किन दैट यू शुड बी मेकिंग. आज उसी गलती के बारे में बात कर लेते हैं सो दैट यू कैन टेक योर डिसीजंस वाइजली. सो आई टोल्ड यू दैट वन ऑफ माई कंसर्न्स इज facial hair. So I have had these facial hair for last 10 to 12 years and I never got rid of them. I was really okay with them until and unless I decided on my own. मुझे एक चुल हुई और मुझे लगा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे एक बार तो कुछ करना चाहिए इनके लिए. I want to see my face clearer and cleaner and smoother. Though, okay, nothing. So I just felt like that I should go for it and I decided that I will try some hair removal method. उसके पहले ना मैंने कभी फेस पे वैक्सिंग कराई थी, ना शेविंग की थी, ना ही वो थ्रेडिंग की थी. मैं सिर्फ वन मोर थिंग दैट आई फेस पे आई डू दिस थिंग फोरहेड विथ ब्राज़ीलियन वैक्स, वो वाला वैक्स जो हम लगाते हैं और पील ऑफ कर देते हैं. ओके, दैट इज़ वॉट दैट कुड बी ऑफ क्रीमिश कलर और पिंकिश कलर. उसको सिर्फ लगाया जाता है और हाथ से खींच दिया जाता है. नो स्ट्रिप इज़ यूज इन दैट. आई वुड एडवाइज यू टू go and get this done if you want to do. Though I have a sensitive skin, but maybe my forehead is not as sensitive as my cheeks or chin or nose, so this was a good option for me. मैं पिछले 3 साल से ब्राज़ीलियन वैक्स अपने फोरहेड पे करा रही हूँ एंड इट इज़ ओके. जिस दिन मैं कराती हूँ उस दिन बहुत लाइट रैशेज या दाने होते हैं, बट दे गेट सबसाइड. वो दे जस्ट सबसाइड इन 24 hours only. And it has made my forehead smoother. I don't get rid of my baby hair because I like them. Rest of my forehead I get it done with Brazilian. पिछले 3 साल या 3.5-4 साल से मैं करा रही हूँ and I have noticed this one thing कि मेरी growth कम हुई है eventually. और this has happened gradually I would say. पहले initially नहीं था but अब थोड़ा कम हो गया है. मैंने last जब वैक्सिंग कराया था it was October mid. Now it's Jan, so it's been more than 1.5 months. And yes, it's been more than 1.5 months already, and I haven't got my growth, full growth yet. And so this is, I look a bit unkempt क्योंकि ना I have done threading, neither I have went for this wax, nor I have done my muchi. Nothing. So this is what I have just applied a moisturizer on my face right now. So I'm talking about my facial hair because I tried facial waxing for the first time in October mid. Not just this, but I planned that I will do this also and this also and this also, and I got it done. Now let's talk about the pros and cons. Kitna the cost of this and what things you should keep in mind while going for facial waxing and what are my thoughts about it. We'll discuss everything here. So because मैं ये कराती थी, ये डिस्कस करना आपके साथ इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मैंने कैसे सोच लिया कि मैं ये भी करा सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने फोरहेड पे ब्राज़ीलियन वैक्स कराती थी. तो आई थॉट दिस ब्राज़ीलियन वैक्स विल सूट माई स्किन एज वेल, क्योंकि मुझे फोरहेड पे कुछ नहीं होता. एंड आई वुड से I go to a place which is hygienic. My beautician is knowledgeable. She doesn't apply anything on my face जो मुझे सूट ना करे, because she is very well aware that I have a very sensitive skin and not every other product suits my skin. Okay, so सबसे पहले आप ये 3 चीज़ें ध्यान रखें कि आप जिनके यहाँ जा रहे हैं उन्हें इस बारे में नॉलेज है कि नहीं, वो ये करते हैं कि नहीं रेगुलरली. सेकेंड, if they are using and they are taking care of all hygienic products, if they are using the hygienic products and if they are using the hygienic methods to do it. Okay, and third, talk with your beautician beforehand. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बस सोच लिया और जाके करा लिया. नहीं, मैंने एक दिन पहले बात की थी कि मैं हमेशा से ये करा रही हूँ, तो should I be going for this also. मुझे कभी किसी ने बोला नहीं, टू बी ऑनेस्ट, कि आप जाइए और कराइए, बिकॉज ये जो फेशियल हेयर है मेरे ये इतने दिखते भी नहीं है कि मैं इनको जाके कराऊँ. बट जब मैंने क्लोजली देखती हूँ तभी मुझे पता चलता है. मे बी पीपल आर वेरी काइंड अराउंड मी
क्योंकि होता है, मुझे लोग कहते हैं कि मैम, या फिर देर आई मीट अ लॉट ऑफ गर्ल्स ऑन डेली बेसिस बिकॉज आई एम अ टीचर एंड आई डील विद टीनेजर्स एंड आई टॉक टू देम एंड आई हैव सीन गर्ल्स टॉकिंग टू मी asking me, ma'am, how like what do we do for these facial hair, what do we do for marks? And I must say one thing. Okay, you need to carry yourself well, just this. ओके, आई हैव हैड दीज, मुझे कभी कुछ नहीं हुआ. मैं आपको इसलिए ये ऑनेस्टली सब कुछ इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अपने लिए डिसाइड कर पाएँ. सो आई प्लान टू डू इट इन अक्टूबर. पहले प्रोज की बात कर लेते हैं. प्रोज ये है कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स होते हैं. मैंने अक्टूबर मिड में कराए थे. अभी भी मेरी ग्रोथ, दिस इज़ नॉट माई फुल ग्रोथ ऑन फेस, दिस इज़ जस्ट 90% ग्रोथ. सो लॉन्ग लास्टिंग होता है. सेकेंड, आपकी स्किन जो होती है बहुत स्मूथ दिखती है. आई डोंट नो अबाउट शेविंग एंड थ्रेडिंग. शेविंग और थ्रेडिंग के टाइम पे कैसी दिखती है, बट व्हेन यू गेट योर स्किन वैक्स्ड, बहुत ज़्यादा क्लीन, बहुत ज़्यादा स्मूथ. और आई वुड से कि जो डेड स्किन होती है वो भी पील ऑफ हो जाती है, तो एकदम से आपको लगेगा कि यार दिस इज़ शाइनिंग, दिस इज़ ग्लोइंग. ओके, दैट्स क्विकली क्लीन. बिकॉज आई हैव हर्ड पीपल टेलिंग कि जब आपके फेस पे फेशियल हेयर होते हैं, आई डोंट नो मच अबाउट मेकअप बिकॉज आई हैव नेवर ट्राइड और डन मेकअप ऑन रेगुलर बेसिस, नॉट इवन ओकेजनली, लाइक बहुत कम. वो भी मैं खुद नहीं कर पाती, मेरी बहन मेरे लिए करती है. थैंक यू बहन. हाँ, तो उसने मुझे बताया है एंड द पीपल हैव टोल्ड मी दैट जब आपके फेस पे फेशियल हेयर होते हैं और आप मेकअप करते हैं तो आपका जो मेकअप होता है वो थोड़ा कैकी, थोड़ा पैची दिखता है, विच डजंट लुक गुड. Though I don't do it, so I don't know much about it. But if you are planning to go for waxing, think of it twice because I am talking about the cons now. Okay, cons, I'll attach pictures, before after pictures and how it recovered. So जब मैंने waxing कराई and I was really happy with it because my skin looked super clean and super smooth and soft. So I was like, wow, this is something I want to do every second month because मुझे हर 2 महीने में, like I would say full growth 2 महीने में मुझे forehead पे भी आती है. So I thought ये भी, and this is how it is. अभी तक नहीं आई है, 2 महीने होने वाले. So लॉन्ग लास्टिंग है वो आपको पता चल गया है. और द रिजल्ट्स आर लाइक बेटर देन, आई डोंट नो, इट इज़ बेटर देन शेविंग एंड थ्रेडिंग बिकॉज द स्किन लुक्स, बिकॉज इट इज़ क्लीन्ड, इट इज़ कम्प्लीटली क्लीन. तो कुछ भी आपको ऐसे थोड़ा बहुत भी रेसिड्यू नहीं दिखता है वैक्सिंग के बाद. दो इट कैन हैपन इन शेविंग और थ्रेडिंग, आई एम नॉट श्योर. यू पीपल कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन प्लीज़. ओके, नाउ जब मैंने कराया, मैं घर आई एंड आई वॉज वेरी हैप्पी विथ माई स्किन. आई वॉज डांसिंग ऑल अराउंड कि वाह 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 कितनी सुंदर दिख रही हूँ मैं, मेरी स्किन कितनी सुंदर हो गई है, एकदम क्लियर, एकदम स्मूथ. लेकिन उसी रात, ओके, मेरी ब्यूटिशियन इज़ अ रियली नाइस पर्सन. दिस इज़ अ शाउट आउट टू हर फॉर बीइंग सो प्रोफेशनल, स्टिल सो काइंड ऑन मी, स्टिल सो काइंड टू मी. एंड सो उन्होंने मुझे सब कुछ बताया था कि हो सकता है आपको थोड़े बहुत दाने हों बिकॉज आप खुद भी इस चीज़ को समझ सकते हैं क्योंकि आपकी फेस की स्किन बहुत थिन होती है, बहुत सेंसिटिव होती है. जब आप वैक्स कराते हैं तो वो ऐसे खिंचता है, तो जो आपकी स्किन है उसके साथ वो भी हल्की सी, आप कितना भी, कोई आपको कितना भी मना करे कि वैक्सिंग से आपकी स्किन डैमेज नहीं होगी, ये सब मुझे पता था कि स्किन डैमेज होती है. नॉट लेकिन एक बार में नहीं होती है, नॉट इन दी फर्स्ट टाइम, बट इट हैपन्स. वो होता है ना कि सब आपको सब कुछ बता देते हैं. बट जैसे जावेद अख्तर साहब ने कहा है कि दूसरों की गलतियों से कौन सीखता है, सबको एक हादसा ज़रूरी है. तो वही हादसा आई जस्ट डिस्कस. जब मैंने कराया तो जब मैं घर आई रात को, मुझे एज शी इन्फॉर्म्ड, मुझे हल्के हल्के से दाने होने शुरू हुए. मुझे लगा दिस इज़ वेरी नॉर्मल, दाने तो होते ही हैं, हो जाएंगे ठीक. दाने ठीक नहीं हुए. मैंने एलोवेरा जेल लगाया, मैंने आइज़ लगाया, रेगुलरली लगाया फॉर लाइक 3 days क्योंकि मुझे उसके 7 या 8 दिन बाद ही अपनी फ्रेंड की शादी के लिए जाना था. आई वॉन्टेड टू गो टू हर वेडिंग और आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये सब ठीक हो जाएगा, बट इट डिडंट गो वेल. मेरा पूरा फेस एक्ने से भर गया, इधर इधर रेड 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 रेड, नॉट दोज पस एक्ने बट दोज बोलते हैं ना जिन्हें रेड 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 रैशेस जैसे एक्ने पूरे फेस पे मुझे हो गए. एंड दे डिडंट गो अवे फॉर लाइक अ वीक. येस,
एंड मुझे इचिंग भी हो रही थी, मुझे रेडनेस भी हो रही थी, मेरे जो पोर्स थे वो इनलार्ज हो गए थे, क्योंकि जब आप वैक्सिंग कराते हैं, जब वो पील होता है तो आपके जो पोर्स हैं वो क्लॉग्ड भी हो जाते हैं, ठीक है, वो हल्के से ओपन भी हो जाते हैं, और आपकी जो इनग्रोन हेयर, जो छोटे छोटे बाल रहते हैं वो अंदर भी रह जाते हैं, तो कई बार इससे एक्ने ब्रेकआउट होने के पूरे चांसेस होते हैं, और वो मेरे साथ हुआ। सो दीज वर दी कॉन्स कि मेरे साथ तो हुआ। मैं पिक्चर्स अटैच कर दूंगी आपके लिए, सो दैट यू कैन मेक योर ओन चॉइस। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ कि what can happen if you wax your face. So I would never advise anyone to go for waxing on their face, because that is not a good idea, to be honest. आप अल्टीमेटली जब हर महीने हर 2 महीने में अपनी फेस को वैक्स कराएंगे तो इट विल गेट डैमेज। आप ऐसे सोचिए कि आप किसी भी आप बार बार अगर अपनी स्किन को छूते हैं या ऐसे ऐसे दबाते भी हैं या कुछ स्किन पर रखकर खींचते भी हैं तो आपकी स्किन डैमेज होती है। तो वैक्स कराना हर महीने इज़ समथिंग हार्श ऑन स्किन, और बिकॉज हैंड्स की स्किन और चेहरे की स्किन बहुत अलग होती है। हैंड्स और लेग्स की स्किन इज़ नॉट एज थिन एज योर फेस स्किन. So I would never advise anyone to go for waxing on face, even if it is Brazilian, even if you're these beauticians who are telling you kuch nahi hota. It's because my beautician is really nice. She was very honest about everything. That was my decision to go for it. Okay, if somebody is telling you kuch nahi hota, aap to karao, no, you have to think yourselves. You have to decide for yourselves. No, don't listen to anybody else. Don't even listen to me. If you think it suits you, just try it on your own. But I will attach everything. This is my honest review that I will not go for waxing ever again on my face. The waxing costed me around 500 rupees for my forehead, for everything. For my whole face it was 500 or 550 rupees. So it was manageable for me, but I cannot keep doing it every second month. I'm not saying, yes, of course, I'm not saying कि मैं इसलिए नहीं करा सकती because 550 or 500 rupees is a lot, because 500 rupees लग जाता है। आप किसी अच्छे प्रोफेशनल इंसान से कराते हैं 550 rupees आराम से लग जाता है, बट आई एम नॉट गोइंग फॉर इट बिकॉज इट डिडंट सूट माई स्किन. दिस वॉज ऑल अबाउट फेस वैक्सिंग. आपको प्रोस पता चल गया, आपको कॉन्स पता चल गया, आपको प्राइसिंग पता चल गया, आपको पता चल गया आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है. अगर आपके पास कोई और भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू फेस वैक्सिंग, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसे डाल सकते हैं. आई विल ट्राई टू एड्रेस इट एंड आई विल बी रियली हैप्पी अबाउट इट. थैंक यू सो मच. स्टे हाइड्रेटेड, स्टे हैप्पी. बाय बाय.